Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 11th. So as you know, we are discussing about algorithm and flowchart, okay, in your syllabus. Now, in my last video, I discussed the how to write algorithm and how to make a flowchart with the help of algorithm. I also discuss with you that I will give you some more example and I will try to make you understand more about algorithm and flowchart. So to continue with this series, I'm going to show you some basic example which help you to out understand the algorithm and flowchart also. Okay, so let's get started, student. Here I just want to recall the previous session about the flowchart. Here I am going to display a message here about the flowchart symbols. Okay. So first of all, I am going to tell you about the start and stop symbol and this symbol known as ellipse. Okay. This symbol known as ellipse which help you to start and stop the flowchart. Okay. Now this one is a flow lines which tells about the flow of a flowchart. Means how your process will run, how your process will go. Okay. Now this is our next symbol which is for getting input or taking input and getting output. Okay. Used for input and output information. This symbol, this is rectangle, is used for processing. Okay. And the last one here, it is a decision symbol or you can say diamond symbol which help us to write a program for conditions. Okay. The conditions based program. Okay. So I'm using a word program. So yes, after this session we will start Python programming language. Okay beta. So this is the fundamental of the programming language. Okay, if you understand the algorithm flowchart, believe me, it is very easy to all of you to understand the programming language and the tools. Okay, you can build up your logic with the help of algorithm and flowchart also. Okay, so as I discussed earlier, I have to give some more example which you make understand about the flowchart and algorithm. So let's take first. Now, this is the first program which I discussed with your exercises also, that is write an algorithm and flowchart to display an average of three numbers. Okay बेटा, तो अब आपको देखना है कि आप ये एल्गोरिथम आप कैसे लिखेंगे. जैसे मैंने बताया था एल्गोरिथम होता क्या है, इज अ डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप written in simple English language. Okay, and is very nearby to programming language. Is very nearby the programming language. It is not a programming language, but it is nearby programming language. It means algorithm helps programmer to write programs. Okay, so according to this we can write a program which helps, which provide a guideline. Okay, how we write a program with the help of algorithm and flowchart. Okay, so here write an algorithm and flowchart to display an average of an any three numbers. Yes, हमें तीन नंबर एक्सेप्ट करने हैं और उन तीन नंबर का हमें एवरेज निकालना है. तो सिंपल, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे एल्गोरिथम का, पहला स्टेप हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है.
ठीक है ना। इसमें सेकंड स्टेप क्या आएगा, रीड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यस, कोई भी हम नंबर लेते हैं 10, 20, 30, हमने ये 3 नंबर ले लिए, ठीक है। एंड कैलकुलेट द एवरेज, बेटा ये प्रोसेस में आ गया। तो दिस इज एन इनपुट, ये मेरा इनपुट हुआ फॉर रीडिंग, दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस इज एन आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है तो ये 3 कंसेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है। फर्स्ट इनपुट, राइट, सेकंड वन इज अ प्रोसेस एंड थर्ड वन इज आउटपुट, ओके। सो अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, हाउ यू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। बिफोर टू राइट एनी प्रोग्राम in any programming language, first you have to understand what actually program is, what actually problem is, okay. So here my problem here is to display an average of three numbers, any three numbers, okay. So simple, I know the logic, take the numbers, add the numbers and divide by the numbers by 3, simple. So here this is my input, number 1, number 2 and number 3, okay. Then after average will be number 1 plus number 2 plus number 3 and divide by 3। ये मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया। आप क्या कर सकते हैं, 2 स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहले सर कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 का सम निकाल सकते हैं एंड देन सम डिवाइड बाय 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने एक ही लाइन में यहाँ पे लिख दिया, ओके। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वी विल गेट एन आउटपुट। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, डिस्प्ले एवरेज। जो हमने एवरेज यहाँ पे निकाला वो एवरेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ओके बेटा। एंड लास्ट में क्या लिखा, स्टेप 5 में स्टॉप। तो ये हमारा डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिससे हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। और हमने क्या लिखा, ये एल्गोरिदम लिखा। अब इस एल्गोरिदम का यूज करके प्रोग्रामर क्या कर सकता है, प्रोग्रामिंग लिख सकता है। अब प्रोग्रामिंग के लिए वहां पे वो वेरिएबल यूज करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेगा, डिस्प्ले फंक्शन यूज करेगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पार्ट है। फिलहाल दिस इज द बेसिक फंडामेंटल पार्ट, ओके, बिफोर टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग, ओके। तो दिस इज माय एल्गोरिदम। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे होगा बेटा, वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल फ्लो चार्ट है। क्या कह रहा है, स्टार्ट, अब इनपुट क्या लिया, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स कौन सा यूज किया है, इनपुट बॉक्स, ठीक है। इनपुट और आउटपुट बॉक्स दोनों सेम है, ठीक है। तो इनपुट में क्या लिया, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3, ये इनपुट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो बॉक्स आया वो क्या है, प्रोसेस, राइट। प्रोसेस में क्या हुआ, एवरेज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 डिवाइड बाई 3, ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद क्या निकाल के दिया बेटा, आउटपुट, यानी कि एवरेज। ये भी आउटपुट बॉक्स है, इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स सेम होते हैं। सो यहाँ पर फ्लो चार्ट क्या आपका ग्राफिकल इंटरफेस है, ठीक है। ये आपके एल्गोरिदम का पिक्टोरियल फॉर्म है या ग्राफिकल फॉर्म है। सिंपल फ्लो चार्ट क्या होता है, इट्स अ ग्राफिकल फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिदम, सिंपल, और पिक्टोरियल फॉर्म है एल्गोरिदम। तो ये आपका बेटा फ्लो चार्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं सेकंड प्रोग्राम की, जो मैंने आपको दिया था लिखने के लिए, वो ये रहा। क्या है ये, राइट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट अ नंबर इज इवन और ऑड। सिंपल, ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब किसी नंबर को हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो इवन है या कि ऑड है, सिंपल, उसका रूल आपको पता है। इफ नंबर्स टोटली डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर इज 0, देन वी कैन से नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड, सिंपल, ठीक है। इवन ऑड को यहाँ पर हम सम और विषम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एल्गोरिथम लिखा जाएगा। एल्गोरिथम ने क्या बोला, सबसे पहले लिखा स्टार्ट स्टेप 1। यहाँ पे देखो पिछले बार स्टेप कितने, 5 स्टेप, यहाँ पे 6 स्टेप हो गए, ठीक है। कैसे हुए, लेट्स सी। सबसे पहले क्या हुआ, स्टेप 1 स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू राइट स्टार्ट एंड स्टॉप स्टेप, ओके, व्हिच टेल अस फॉर स्टार्टिंग द एल्गोरिथम एंड स्टॉपिंग द एल्गोरिथम, स्टार्ट द एल्गोरिथम एंड स्टॉप द एल्गोरिथम, ठीक है, बिगिनिंग एंड एंडिंग। नाउ हियर रीड नंबर, हमने कोई भी नंबर रीड किया, इनपुट लिया, सपोज 7, ठीक है। अब 7 हमारा ऑड है नंबर, इवन नहीं, क्योंकि अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 2 से
तो यहाँ पर रिमाइंडर इसका 1 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? ऑड नंबर। तो हमने इसका क्या लिखा, एल्गोरिथम लिखा, रीड नंबर इफ नंबर परसेंटेज टू, यहाँ पे परसेंटेज बेटा यहाँ पे जो लगा हुआ उसको बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस एक हमारा फंक्शन है जो हमको रिटर्न करता है क्या? रिमाइंडर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या लगा, नंबर परसेंटेज टू और मॉड्यूल टू डबल इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन यानी कि इस कैलकुलेशन का वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर 0 आता है और वो 0 इस 0 के इक्वल है, देन हम कह सकते हैं नंबर हमारा क्या है? प्रिंट इवन अदरवाइज ऑड। ठीक है, तो यहाँ पर इफ नंबर परसेंटेज टू डबल इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ये 0 इस कैलकुलेशन में आए हुए 0, इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या आएगा? यस, देन प्रिंट क्या कर दो? इवन। अगर नो होता है तो प्रिंट क्या कर दे? ऑड। ठीक है, तो ये हम कंडीशन बेस्ड हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इसके पहले जो हमने प्रोग्राम लिखा था वो हमारा स्टेप बाय स्टेप था, यानी कि प्रोसीजरल लैंग्वेज था। ठीक है, ये हमारा कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम हो गया। क्लियर? नाउ यहाँ पे सिंपल नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, अगर रिमाइंडर कितना आता है? 0, और 0 के इक्वल अगर 0 हुआ तो देन यस प्रिंट इवन, अदरवाइज नो प्रिंट ऑड। एंड देन लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा? स्टॉप। अब इसका हमें क्या देखना है? हमें इसका फ्लो चार्ट देखना है। तो देखिए फ्लो चार्ट कैसे कहता है। सबसे पहले एलिफ सिंबल स्टार्ट के लिए, इनपुट सिंबल फॉर इनपुट नंबर। अब यहाँ पे कंडीशन के लिए डायमंड सिंबल आया। ठीक है, डायमंड सिंबल क्या कह रहा है? इफ नंबर परसेंटेज टू डबल इक्वल टू 0 के, राइट? अगर ये यहाँ पे कैलकुलेशन 0 के इक्वल है, यस यस, दो फ्लो लाइन आ रही है यहाँ पे, या तो यस आएगा या तो नो आएगा। नंबर रिमाइंडर में 0 आएगा या तो रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो यस में डिस्प्ले इवन नंबर और नो में डिस्प्ले ऑड नंबर, और उसके बाद ऑड नंबर प्रिंट करने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए? एंड में। यहां से भी इवन नंबर प्रिंट करने के बाद कहाँ जाना चाहिए? एंड में। ठीक है, तो फ्लो लाइंस बेटा आपको बताती हैं फ्लो। ठीक है, कि कहां से प्रोग्राम आपका रन होगा और कहां पे जाकर स्टॉप होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं प्रोग्राम, वो आपका ये है। क्या कह रहा है? राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। सिंपल, डिस्प्ले एनुअल सैलरी ऑफ एन, एनुअल का मतलब जो ईयरली सैलरी है। तो ईयरली सैलरी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको एम्प्लॉय की एक मंथली सैलरी गेट करनी है, लेनी है, और उस मंथली सैलरी में 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, आपको क्या मिल जाएगा? एनुअल सैलरी हो जाएगी। सपोज अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 5000 है इन अ मंथ, ठीक है, और उसकी एनुअल सैलरी निकालनी, तो क्या करें? मल्टीप्लाई सिंपल कर देंगे। तो एनुअल सैलरी 5000 मल्टीप्लाई 12 बिकम 60000। तो 60000 यहाँ पे क्या हो सकता है? इसका एनुअल सैलरी। अब इसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए, ये आपका प्रोसीजरल प्रोग्राम है। ये स्टेप बाय स्टेप, जो कि सारे के सारे स्टेप यहाँ पर आपके एग्जीक्यूट होंगे। नाउ स्टार्ट रीड सैलरी। किसी भी एम्प्लॉय की क्या करना? रीड। रीड का मतलब यहाँ पे इनपुट से। ठीक है, रीड सैलरी, आपको सैलरी आपने रीड किया। अब एएस, एएस का मतलब एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? सैलरी मल्टीप्लाई 12। अब ये मेरा प्रोसेस हुआ। प्रोसेस के बाद आउटपुट कहां पे जाके शुरू हो जाएगा? एएस में। तो आप इस बार प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट योर एनुअल सैलरी इज एएस। एएस में क्या है बेटा? आपका एनुअल सैलरी कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो दिस टाइम आई एम प्रिंटिंग माई आउटपुट विद अ मैसेज, योर एनुअल सैलरी इज एएस, एंड देन लास्ट में स्टॉप। अब बेटा इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इसका फ्लो चार्ट कैसे होगा? देखिए, ये इसका फ्लो चार्ट है। क्या किया? सबसे पहले एलिफ सिंबल, ओवेल जिसको बोल सकते हैं, हमने स्टार्ट लिखा। फिर यहाँ पे लिखा क्या? इनपुट सेल, यानी कि आप क्या करो? इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट सेल लिखा, और फिर ए सेल यानी एनुअल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई 12। ये प्रोसेस हो गया। एंड देन इस प्रोसेस के बाद क्या आएगा? आउटपुट। आउटपुट के लिए प्रिंट एएस यानी एनुअल सैलरी, एंड देन लास्ट में क्या होगा? स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? फ्लो चार्ट हो गया। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ये सारे प्रोग्राम बेटा मैंने आप लोग के लिए रखे हैं ताकि आपको इससे समझ में आए।
कि आपको एल्गोरिदम कैसे लिखना है, आपको फ्लो चार्ट लिखना है, और यही एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेंगे कि प्रोग्राम आपको कैसे लिखना है, लॉजिक कैसे लगानी है आपको। सिर्फ वहां पे आपको सिंटैक्स याद करने हैं, ठीक है। सिंटैक्स जैसे कि अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो लैंग्वेज सीखने से पहले आपको एबीसीडी सीखनी पड़ेगी ना उस लैंग्वेज की, ठीक उसी तरह से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है, तो आपको प्रोग्राम लिखने का तरीका सीखना है। लॉजिक तो आप यहाँ पे आप सीख ही रहे हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड विच नंबर इज ग्रेटर इफ टू नंबर इज एंटर्ड। सिंपल, अगर दो नंबर एंटर करते हैं तो उसमें आपको चेक करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। अब इसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा, देखिए सिंपल, स्टार्ट रीड टू नंबर्स, ठीक है, रीड टू नंबर्स ए एंड बी, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं एज ए एंड बी, हमने दो नंबर ए एंड बी कोई ले सकते हैं, 70 और 65, ये दो नंबर ले लिए हमने। अब दो नंबर में कौन सा बड़ा होगा तो चेक करेंगे कंडीशंस के थ्रू, तो यहाँ पे देखो क्या है, इफ, थर्ड स्टेप में क्या, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अब क्या, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी से बड़ी है, देन अगर यस होता है तो प्रिंट ए, यानी कि ए की जो वैल्यू प्रिंट कर दो, अगर नो होता है तो प्रिंट बी की वैल्यू, सिंपल, एंड लास्ट में स्टॉप। तो ये लॉजिक मैं सिखा रहा हूं आपको, कैसे आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट नहीं होती है, इफ यू नो द लॉजिक, इफ यू बिल्ड द लॉजिक यू कैन सिंपली लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसी का फ्लो चार्ट कैसे होगा बेटा, ये देखिए फ्लो चार्ट है। अब सबसे पहले क्या लिखा, स्टार्ट, ये आपका एलिप्स सिंबल, ठीक है, तो राउंडेड शेप में है। अब इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी, ये दो नंबर हमारे हो गए ए एंड बी। अब इसको चेक कहां पे किया, डायमंड सिंबल, याद रखिए जब भी डायमंड सिंबल कब आएगा, जब आपका कोई कंडीशंस होगी, कंडीशन जब आपके पास आएगा तब वहां पे डायमंड सिंबल आएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको फ्लो लाइंस यूज करनी है। तो अब यहां पर अब क्या लिखा बेटा, ए इज ग्रेटर देन बी, यस तो प्रिंट ए एंड देन स्टॉप, अगर नो है तो प्रिंट बी एंड देन स्टॉप। सिंपल, ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल सा फ्लो चार्ट है, विच हेल्प यू टू फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर इफ टू नंबर इज एंटर्ड, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर 5 पर, प्रॉब्लम को समझते हैं। राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। सिंपल, हमको क्या करना है, एल्गोरिथम लिखना है किसका, कि क्या कोई पर्सन एलिजिबल है वोटिंग के लिए या फिर नहीं। ओके, सो फॉर दैट आई रोट इट हियर एल्गोरिथम, स्टार्ट रीड पर्सन्स एज एज एज, यहाँ पे एज, यहाँ पे एक सिंपल क्या होगा, एक इनपुट वेरिएबल होगी जहां पर एज की वैल्यू आएगी, तो रीड पर्सन्स एज एज एज। अब हमको क्या किया, हमने एज को चेक किया, अगर पर्सन की एज ग्रेटर और इक्वल टू 18 है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ अगर किसी व्यक्ति की एज 18 ईयर से 18 साल है तो वो एलिजिबल है फॉर वोटिंग के लिए, तो इसलिए मैंने ग्रेटर और इक्वल टू दोनों लगाया है। अगर ग्रेटर है या इक्वल है, दोनों के केस में क्या होगा, अगर यस तो प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट, और अगर नो है तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट। सिंपल, ये बेटा मैंने आपको बताया कैसे एल्गोरिथम लिखेंगे द अबव प्रॉब्लम का, एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट का, ठीक है। अभी सिर्फ आपको लॉजिक देखना है, अभी मैं प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ खाली आपको लॉजिक देखना है, ठीक है। लॉजिक बिल्डिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर सिंपल इसका एल्गोरिथम, सॉरी फ्लो चार्ट लिखा गया, स्टार्ट ओवल सिंबल और इसको एलिप्स बोलते हैं, एंटर पर्सन्स एज, यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट हुआ, अब वो इनपुट कहां पे आ गया, कंडीशंस में आ गया, कंडीशन में क्या है, इज एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, y का मतलब यस, n का मतलब नो, अगर यस है तो डिस्प्ले यू आर एलिजिबल फॉर वोट एंड देन स्टॉप, यहाँ पे देखिए स्टॉप आ गया, तब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट एंड देन स्टॉप, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस एल्गोरिथम में, इस फ्लो चार्ट में कोई एक ही स्टेटमेंट आपके प्रिंट होंगे दोनों ने,
इस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है, देखिए नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या है, प्रॉब्लम हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट अ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ठीक है, कोई आपको एंटर कराना है ईयर, और वो ईयर लीप ईयर है या नहीं, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सिंपल सा इसका एल्गोरिथम लिखा है। हमें पता है अगर किसी भी ईयर को सिंपली, बहुत ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं उसके, लेकिन एक रूल ये भी है कि अगर ईयर को डिवाइड करें 4 से और रिमाइंडर का 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट रीड ईयर, ईयर यहाँ पे क्या है, वो वैल्यू जो कि आपकी ईयर आई, सपोज इसमें मैंने यहाँ पे ले दिया ब्रैकेट के अंदर सपोज 2118। क्लियर, तो ये ईयर हमारा एंटर होगा। ठीक है, अब वो ईयर एंटर हुआ, वो एंटर ईयर यहाँ पे आ गया। इफ ईयर परसेंटेज 4 यानी कि मॉड्यूलस 4, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, 0 इक्वल 0 के होता है। ठीक है, देखिए इस स्टेटमेंट से क्या होगा बेटा, यहाँ से आपका आउटपुट या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। दो ही केस हो सकती है, या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर 0 आता है तो 0 इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई। इफ यस प्रिंट एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है तो क्या होगा, नो प्रिंट एंटर्ड ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, इसके बाद स्टॉप है। अब फ्लो चार्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ पर इनपुट, अब देखो कुछ इस तरह से इनपुट लिया गया है, ये पाइथन में लिया गया प्रोग्राम में। ईयर इनपुट ईयर, ठीक है, ये इनपुट ईयर आ गया सपोज एग्जांपल 2018। अब उसको कहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है, डायमंड सिंबल आ गया। ठीक है, तो ईयर परसेंटेज 4, ठीक है, ईयर परसेंटेज 4 भी यहाँ लिख सकते हैं और मॉड भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है। इक्वल टू 0, दोनों का अगर इक्वल वैल्यू 0 आती है तो ट्रू, ईयर इज लीप ईयर, और एंड यानी कि स्टॉप। नहीं अगर होता है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा और डिस्प्ले ईयर इज नॉट अ लीप ईयर एंड देन स्टॉप। तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया बेटा, इसका टू फाइंड आउट ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अब हम जब नेक्स्ट अपने प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, सिंपल क्या प्रॉब्लम कह रहा है, प्रॉब्लम इज रिटन हियर राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट to convert a Celsius temperature into Fahrenheit। ठीक है, to convert a Celsius temperature into Fahrenheit। अब देखिए सिंपल, आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है किसी टेम्परेचर, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, स्टार्ट एकदम स्टेप 1 एंड रीड टेम्परेचर इन सेल्सियस एज सी। सी हमारा वो वैल्यू है जो कि हमने इनपुट में लिया। अब इसका क्या निकालना है, हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है इसकी। तो हमारे पास फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट यानी F इज इक्वल टू C यानी टेम्परेचर जो हमारे सेल्सियस में मल्टीप्लाई 9/5 एंड देन प्लस 32। ये फॉर्मूला जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस हो गया, ये इनपुट हुआ, ये प्रोसेस हुआ। प्रोसेस के बाद हमारे पास एक आया रिजल्ट आया, और फिर उस रिजल्ट को प्रिंट करा दिया विद मैसेज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज F। ठीक है, एंड देन स्टॉप। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में मैंने आपको सिर्फ खाली क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है। इसका फ्लो चार्ट आपको क्लास वर्क में करना है। ठीक है, ये आपको इसका फ्लो चार्ट आपको बनाना है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है बेटा, ये फ्लो चार्ट आप होमवर्क में भी करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले अ स्टूडेंट इज पास और फेल इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, कोई स्टूडेंट पास है या फेल है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड। ठीक है, अब चलिए हमने कंडीशन ले लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट स्टेप 1 रीड,
क्या रीड करना है, मार्क्स रीड करना है एज M1, यानी कि मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। सपोज यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकला क्या, यानी कि परसेंटेज। ठीक है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डिवाइड बाई 4। अब अगर ये ग्रेड, ठीक है, 40 के अबव है, इफ GD इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 40 या 40 के अबव है, अगर यस तो प्रिंट पास, इफ नो प्रिंट फेल। सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, स्टॉप, यानी इन दोनों में से कोई स्टेप 4 या 5 ही आपका क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, यहीं पर इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे, अब इसी का आपको क्या करना है, आपको इसका फ्लो चार्ट लिखना है। ठीक है, आपको इसका फ्लो चार्ट लिखना है होमवर्क में। होमवर्क में आप इसका फ्लो चार्ट लिखेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है, वो ये रहा। क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। चलिए अब इसको समझते हैं। अब ये जो हमारे पास जो फ्लो चार्ट, जो एल्गोरिथम आया है, वो एक रिपीटेड स्टेप का है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको कि ये फ्लो चार्ट कैसे लिखा जाएगा। नाउ स्टेप 1 स्टार्ट, and here I'm going to take a variable. Don't be afraid about the variable. We will discuss variable in our subsequent lecture, so don't worry about it. X just a variable which contain value 1. Okay, now print x। अब इस स्टेप में क्या होगा, print x, यहां पर x की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो प्रिंट x में क्या प्रिंट होगा बेटा, प्रिंट x में 1 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा रहा है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब x की वैल्यू क्या है, पहले 1 है, इस स्टेप से क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। सिंपल, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करें स्टेप नंबर 5 पे, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 20, इफ यस रिपीट स्टेप 3। स्टेप 3 क्या, अभी देखो x की वैल्यू क्या है, 2 है, जो कि लेस है किससे, 20 से। इसका अंदर एक कंडीशन ट्रू हो गई, इफ यस यस ट्रू है ये, रिपीट स्टेप 3। स्टेप 3 क्या हमारा, प्रिंट x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2। ठीक है, फिर ये उसके बाद वापस यहाँ पे आ गया हमारा प्रोग्राम कर्सर। फिर x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। वापस चेक किया, x इज 3 इज लेस देन इक्वल 20, यस अगेन ट्रू, रिपीट स्टेप 3, प्रिंट, यहाँ पे 3 प्रिंट। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर चेक करते हैं, x की वैल्यू 3 है, यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। वापस से x4 इज लेस देन 20, यस अगेन ट्रू, रिपीट स्टेप 3, 4। इस तरह से बेटा आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, सपोज 19 के बाद 19 यहां पर आया, उसके बाद का 19 प्लस 1 कितना हो गया, 20। अब 20 इज लेस देन, नहीं 10 लेस देन, लेकिन इक्वल है, कंडीशन अगेन ट्रू, रिपीट स्टेप 3, 20 हमारा प्रिंट हो गया। अब 20 के बाद जब यहाँ पे स्टेप आएगा 20 प्लस 1, 21 हो जाएगा। अब 21 इज लेस देन 20, नो, कंडीशन फॉल्स, इफ नो स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सारे स्टेप में 1 से लेकर 20 तक आपके नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, सो अब यहां से इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ये फ्लो चार्ट है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट, इनिशियलाइज x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, या लेस देन 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये प्रोसेस सिंबल हो गया, प्रोसेस है। ठीक है, फिर अगेन एक प्रोसेस, इंक्रीमेंट x बाई 1, x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। अब देखो यहाँ पे हमने x इज लेस देन 0 इनिशियलाइज के, सपोज हमने -1 ले लिया, -2 ले लिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 0 या 1 ले लेते हैं, ठीक है, या 0 ले लेते हैं। इंक्रीमेंट x बाई 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। प्रिंट x, 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ चेक किया गया x इज लेस देन 20, अगर है यस तो अगेन इंक्रीमेंट बाई 1, प्रिंट होगा x प्लस 1, 2 हो जाएगा, प्रिंट 2 हो जाएगा। फिर x लेस देन 20, यस, अगेन इंक्रीमेंट बाई 1, 3, प्रिंट 3, फिर 4, प्रिंट 4, 5, प्रिंट 5, इस तरह से 90 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 19 के बाद 19 प्लस 1 प्रिंट हो जाएगा 20, 20 के बाद यहाँ पे आएगा 21, इज नॉट लेस देन 20, नो एंड। तो इस तरह के हमारे फ्लो चार्ट को बोलते हैं रिपीटेड स्टेटमेंट, ठीक है, रिपीटेड स्टेटमेंट। इसको हम लूप के थ्रू प्रोग्रामिंग में करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लूप यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम, वो आपको करना है बेटा। राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर। टेबल ऑफ एनी नंबर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज 5 का टेबल हुआ तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 जा 15 एंड 20, इस तरह से करके 50 तक आपका टेबल हो जाएगा। सपोज नंबर 2 एंटर किया तो 2 का टेबल आना चाहिए, 50 एंटर किया तो 15 का टेबल आना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, ये 3 आपके होमवर्क हैं जो आपको असाइनमेंट में करना है, ठीक है। सो बेटा इस तरह से मैंने आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का एक और लेसन पढ़ाया। आई होप you understand the concept of algorithm and flowchart in this video lecture. Okay, so thank you student for watching it.